कितना ज्यादा diversification if we are talking about our culture, right? Like in Punjab, the people have different food habits, they are wearing different clothes, they are using different language, right? So that is known as diversity. different spreaded form में बहुत सारे अलग अलग cultures, तो उसको बोल सकते हैं diversified. ठीक है, clear हो गया? In last class of international marketing, what we studied about what is the meaning of international marketing, what are the significance of international marketing, right? And one more topic which we completed, 3 topics. The first one is definition. The second one is what is the different characteristics of the international marketing, and the third one is significance of the international marketing. We already understand that the international market is something when we are dealing with the foreigners, foreign companies, we're exporting the product from our domestic country to the international market. Here we are basically analyzing the market in the global term, not in the domestic market. We are not basically engaged in the domestic market only, but we are also engaged in the international market. Like we are dealing in the Canada, US, and another and different international countries. We are basically providing the products. So in the characteristic, the first point of the characteristics are, like we all know that in domestic country, dealing with the product and services, selling the product and services is easier as comparison to the international market. In international market, we have to deal with the so many things it means, because we are dealing in the different country, the government, the culture, the demand of each and every product is very much different in international country. So in that term, the first point or characteristic of international marketing is different legal system. Obviously, the laws, the rules, regulations, and the policies of the countries are different. In India, the procedure, the policy is different for selling the product, for the custom duties, for the taxes, right? For the entering of the foreign goods, importing, exporting, the laws are totally different in India. Same as in US and Japan, they have own legal system. So if we are dealing in the international market, first we have to know about the legal system of that internationally or that particular country. After that, we are easily able to sell the goods or services in the international market. The second one is market characteristic. Obviously, the characteristics of the market, there are some factors such as demand factors, government control. That is basically external factor that is beyond the control of the company. But some factors are there, like the supply, we can say that the supply, the internal management, that can be controlled by the own company or their own country. So here in the market characteristic, every country have different environment, different market environment, and the demand patterns, the government controls are also different, right? Demand pattern is something which is known as ki customer kya demand kar rahe product ka. Like in India, the people are very much spiritual and they are basically investing a lot of money for basically worshipping. It might be possible that they are not basically spending such amount. Here the people are little bit their thinking scenario, their purchasing pattern, and their priority is different. Same as it is in the international market, their priority is different. Okay? So the demand pattern of the customers are different. And the next one is the monetary system. We all know that every country have their own currency. Like in India, there is rupee. In US, there is dollar. So the monetary system and the exchanging rate and the exchanging the money, exchanging that particular currency, that is also the difficult thing as well as a complex thing for any company, right? So the monetary system of each country is different, and the monetary exchange system is decided by the गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री. हर एक कंट्री में, जैसे इंडिया में यहाँ पर एक्सचेंज रेट वगैरह कौन डिटरमाइन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो वैसे ही वहां पर भी कोई एपेक्स बैंक होगा, कोई गवर्नमेंट का कोई सेक्टर होगा, दे आर बेसिकली डीलिंग इन दैट. सो द मॉनेटरी सिस्टम, और वी कैन से द डिफरेंस इन द करेंसीज देयर. Procedures and documentation, every country have their own procedures and documentation system. Like if you are, अगर हम एक बैंक का भी एग्जांपल ले, ICICI है और एक HDFC बैंक है, ठीक है? ICICI बैंक जो है उसमें प्रोसीजर और HDFC के प्रोसीजर अलग है. Just think that the two public banks, their procedure is different. So obviously the country's procedure, different country have different procedure, right? For export, import, and for dealing in the market, their marketing scenario, their marketing procedures, they're dealing with the customer, maintaining the customer loyalty. Everything is maybe different. The strategy will be different.
Now the next point is what is the significance of international marketing? What is the significance of international marketing? हम लोगों ने कर लिया था. Survival is there, growth of international market, sales and profit. You will get the extra benefit if you are basically dealing in the international market. It might be possible that maybe because of the competition, the market is at saturation. So you can sell that product in the international market as well. You don't need to stick in the domestic market, but you can get the opportunity in the international market as well. The next one is benefit from diversification. Definitely will get benefit like global diversification. Maybe your product is easily adaptable in the international market if it is not adaptable in domestic market. So the diversification is there, है ना. हो सकता है आपके प्रोडक्ट का यूज डोमेस्टिक मार्केट में ना समझ आए, दूसरे मार्केट में समझ आए, right? So diversification is there. And international marketing also lead to standard of living, because if the people, more and more people are nowadays, they are basically engaged in the MNCs, they're engaged in the international marketing, they are doing job outside. Like we can say that is a part of globalization as well. But international marketing and entering of so many market and companies, now basically they are providing good opportunity of employment, right? So anyhow, that is helpful for increasing the income level, and it is also helpful for increasing the living standard of people. Living standard is something like people are now, they have more disposable income and they are purchasing more and more product. Their consumption levels are increased. So these are the benefits of the international market, significance, characteristics, and the meaning. Now, today we are going to understand that what are the various stages or evolution of international market, how the international market evolved, किस तरीके से international market evolved हुआ, और अभी उसमें कितने सारे stages हैं. Now we are going to complete this topic, right? Evolution of international market or stages of international market. Evolution of international market or stages of international market. लिख लिया? So the first stage क्या लिखो? First stage क्या लिखो? So the various stages जो हैं वो लिखिए, various stages. सबसे पहले लिखिए domestic marketing. Domestic marketing. The first stage is domestic marketing. Domestic marketing. The second stage लिखिए. Second stage लिखिए export marketing. Export marketing. Export marketing. Then third लिखिए international marketing. Third लिखिए international marketing. Third लिखिए international marketing. Fourth लिखिए multinational marketing. Fourth लिखिए multinational marketing. Fifth लिखिए global marketing. Fifth right, global marketing. लिख लिया? डोमेस्टिक मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, मल्टीनेशनल मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केटिंग. हो गया? लिख लिया कुणाल? Yes, sir. चलिए. So the first stage is domestic marketing. So this is the first stage of evolution. Evolution यानी शुरुआत कहते हैं, evolution of marketing. ठीक है? Before entering into the international market, यानी आप किसी दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में, किसी मार्केट में जब आप एंटर कर रहे हो, उससे पहले the organizations focuses on their domestic market. Like अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर हम कंसेप्ट समझेंगे, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ इंडिया है, तो इंडिया में अगर कोई कंपनी XYZ ओपन होता है, तो फर्स्ट दे वांट टू कवर दिस इंडियन मार्केट, राइट? है ना? इवन इंडिया तो छोड़ो, अगर आप इंडिया में किसी बिहार में, मान लीजिए अपने स्टेट में भी अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हो ABC, तो पहले आप बिहार के मार्केट को कवर करोगे. Why? Because always in the market there is risk associated. We cannot expand at that time only, but it will take the time. Gradually we are going to basically develop, right? We are going to grow. We are going to expand our company, right? So in this concept, what we understand that in India, if we are starting any company in India, first we want to cover Indian market. After that, we are going to move to
toward the international market. So the first focus of every company, basically any company, either that company is of US, either that company is of Canada, either that company is of Japan, first they want to cover their own market. After that, first they focuses on their own market. After that they are going to move toward the international market. अब एग्जाम्पल में देखिए, अगर कोई लोकल पिज्जा शॉप है, लोकल पिज्जा शॉप यानी कोई भी पिज्जा का शॉप है, मान लीजिए एबीसी पिज्जा शॉप मान लीजिए, सो देयर मार्केटिंग, उनका स्ट्रैटेजी क्या होगा, दैट दे फर्स्ट वांट टू कवर द कस्टमर्स ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, यानी इंडिया में ही डोमेस्टिक मार्केट जो इंडिया का है उसी को पहले वो क्या करेंगे, कवर करेंगे, उनके बारे में पहले उनके नीड्स को जानेंगे, उनके वांट्स को जानेंगे, बिकॉज दे आर इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज। एक्सपेरिमेंटल स्टेज का मतलब क्या होता है कि पहले आप जहां हो पहले आप उसको जानोगे, वहां के लोगों को जानोगे, वहां के कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करोगे। देन डोमेस्टिक मार्केट्स जो होते हैं दैट टेंड्स टू बी इथनोसेंट्रिक। इथनोसेंट्रिक वैसा एक अप्रोच होता है, इसको इथनोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। इथनोसेंट्रिक अप्रोच ऐसा अप्रोच है जो बेसिकली फोकस करता है पहले अपने डोमेस्टिक मार्केट में, उसके बाद वो दूसरे मार्केट में फोकस करता है, और जो भी वो प्रोडक्ट को बनाता है ना वो अपने कंट्री के हिसाब से बनाता है। जैसे एग्जाम्पल में जो हल्दीराम है, हल्दीराम को देखते हो आप, किस तरीके का इनका प्रोडक्ट है हल्दीराम का, ज्यादातर वैसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में लोग कंज्यूम करते हैं, इंडिया में लोग खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, दीज आर नॉट आवर फूड, right? But dosa, idli, chole bhature, all these are our food, our country's food, right? So in short, the domestic market, yeah, domestic marketing is the first stage of evolution of the international market. In this marketing, the company focuses on their own country. They want to analyze their customers, they want to analyze their needs and wants, and first they don't want to expand themselves at that time only, but once they are fulfill the needs and wants of the customer, once your companies become successful, after that you are going to move toward the another market, right? So domestic marketing समझ में आया? Domestic marketing क्या है? That is the activities and those activities and process where the company focuses on their own countries and customers needs and want, right? So here they are basically pay attention, ये इनका जो attention होता है ये अपने खुद के कंट्री पर होता है। ये ज्यादातर इथनोसेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। इथनोसेंट्रिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, जहां पर जो प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, द प्रोडक्ट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन कंट्री, मतलब अपने कंट्री के हिसाब से आप प्रोडक्ट को बनाते हो, तो इथनोसेंट्रिक अप्रोच को ये ज्यादातर ध्यान देंगे। एंड ये जो है वो ग्लोबल मार्केट प्लेस, मतलब ग्लोबल मार्केट में जो चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल हो रहा है, ये सब पे भी ध्यान देंगे, लेकिन दे आर गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ देयर ओन लोकल मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पर है कि अभी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट बहुत ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि nowadays the competition is very high, the company, so many companies product is available, alternatives are available, so in that case the domestic marketing are, मतलब the domestic markets है वो भी कहीं ना कहीं forced है कि उनको भी मार्केट में फॉरेन कॉम्पिटिटर के साथ compete करना है। सो कहीं ना कहीं वो चेंज अब अपने आप को करना शुरू कर चुके हैं। सो डोमेस्टिक मार्केट सबसे पहला मतलब इवोल्यूशन का स्टेज है कि पहले हम प्रोडक्ट बनाएंगे और अपने ही कंट्री में पहले उसको बेचेंगे। सो दिस इज नोन एज डोमेस्टिक मार्केटिंग। क्लियर हो गया कुणाल? यस मैम। ठीक है, सो इसमें लिखना चाहते हो लिख लो एक पॉइंट, डोमेस्टिक मार्केटिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेज of evolution of marketing. This is the first stage of evolution of marketing. This is the first stage of evolution of marketing. ठीक है, आगे लिखिए, before entering into international market, before entering into international market, organization focuses on their domestic market,
on their domestic market. On their domestic market. आगे लिखिए, there are no international links in this business. There are no international links in this business. यानी इस तरीके के बिजनेस में कोई इंटरनेशनल लिंक नहीं है, कोई इंटरनेशनल कंसेप्ट है ही नहीं। डोमेस्टिक मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपने ही देश में बेच रहे हैं, कोई भी आउट बाउंड्री क्रॉस करके कोई भी प्रोडक्ट के साथ डील नहीं कर रहे, कोई भी सामान नहीं बेच रहे, अपने ही मार्केट में डील कर रहे हैं, अपने ही कंट्री में बना रहे हैं, अपने ही कंट्री में बेच रहे हैं। ठीक है, इथनोसेंट्रिक अप्रोच को, ये बेसिकली इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक जो कंसेप्ट है इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन इथनोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि हम जब अपने कंट्री के हिसाब से कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, इवन जो इथनोसेंट्रिक वाली जो कंपनीज होती है ना, जो अडॉप्ट करती है, वो अपने जैसा प्रोडक्ट बनाएंगे अपने डोमेस्टिक मार्केट की तरह, और इंटरनेशनल मार्केट में भी जब डील करना होगा तो उसी प्रोडक्ट को बेच देती है। तो खैर उतना आगे नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाओगे, तो बस इतना समझ लो। आगे लिखिए, इसमें आगे लिखिए, a domestic company buys and sells point। आगे लिखिए, a domestic company buys and sells its product within one country. ये इंडिया है, I am just taking as example. The product will be made here, ठीक है, यही बनेगा, यही खरीदाएगा, यही सेल होगा। तो all the things are going done inside the Indian market, because we are Indian and for us the Indian market is our domestic market, right? So what is the meaning of domestic marketing? Clear हो गया बेटा कुणाल? Yes ma'am. मैम वन कंट्री की जगह ओन कंट्री नहीं लिख सकते हैं? हाँ, ओन कंट्री लिखो, ओन ही कंट्री लिखना, OWN, ओन कंट्री। मैंने वन कंट्री लिखा। अच्छा, विद इन ओन कंट्री या विद इन वन कंट्री, मतलब अपने ही कंट्री में, एक ही कंट्री में, और एक ही कंट्री में डील हो रहा है, कोई दूसरे कंट्री में नहीं, खुद के कंट्री में डील कर रहा है। लिख सकते हो विद इन ओन कंट्री या विद इन वन कंट्री। विद इन वन कंट्री लिखो, ज्यादा बेटर होगा, ओन थोड़ा सा कंसेप्चुअल वे में अलग हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट मार्केटिंग। अब here the export marketing जो है, that is the second stage. What is the meaning of export करना, क्या होता है? Basically here we are sending or selling the product. We are selling the product outside the domestic country. मान लीजिए कि हमारा domestic country है और यहाँ पर कोई कंपनी है XYZ. Now they are selling the product in USA, that is the another country. They are selling the product. ये प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से आपको पता होगा इंडिया किस चीज के लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए। तो बहुत बार यहाँ से बहुत सारे स्पाइसेस जो है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और इंडिया में इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब जो इंडिया से बाहर जा रहा है, मतलब वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट आउटसाइड द कंट्री, outside the domestic country. And import is something when we are basically buying the product from the another international market and we are taking it in our own country. यानी दूसरे कंट्री से खरीद कर अपने देश में सामान लाना, that is import. So इंडिया में import सबसे ज्यादा होता है, मान लो पेट्रोल ले लो, आप गोल्ड ले लो। और अगर हम बात करें डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट से हमारे खुद के कंट्री से क्या चीज जाता है यूएसए में, एक्सपोर्ट क्या होता है, तो मान लो स्पाइसेस। So after the domestic country, once we focus in our domestic country, हम अपने domestic country में focus कर लिया, domestic market में अपने एरिया में हमने focus कर लिया, we are now moving, मतलब फिर next term क्या आया, export करना। यानी प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। एक्सपोर्ट मार्केट जो है ये भी कहीं ना कहीं इथनोसेंट्रिक है। जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे अपने लोकल कस्टमर्स और होम कस्टमर्स को देखेंगे और बहुत लिटिल अडेप्टेशन होगा। लिटिल अडेप्टेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई एक कंट्री है, एक्स कोई कंट्री है, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट जो भी है
वो प्रोडक्ट जो है हम एक्स के हिसाब से नहीं बनाएंगे, वो हम अपने ही कंट्री के हिसाब से बनाएंगे और उसका सिर्फ डिमांड अगर यहाँ पर एक्स वाले कंट्री में है, मान लो जिसको कनाडा, इसको मान लो ये ले लो, जापान ले लो, जापान में मान लो कि ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है ये प्रोडक्ट हम अपने कंट्री के हिसाब से बनाएंगे, होम कंट्री के हिसाब से, और बहुत लिटिल बिट चेंजेस करेंगे, यानी बहुत कम चेंज करने का अपॉर्चुनिटी आपके एक्सपोर्ट में होता है। जो बनाते हैं वही दूसरे कंट्री में बेचते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस, अडॉप्शन, लिटिल बिट चेंजेस करके। सो एक्सपोर्ट मार्केट में क्या होगा यहाँ पर कि इसमें हो आपका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि कोई फूड कंपनी है, मान लो कि अ फूड कंपनी दैट एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोड्यूस, मतलब वो अपने प्रोडक्ट को या प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे कंट्री में भेज रहा है, अनदर कंट्री में, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट। अगर मान लो कि यहाँ पर अगर मान लो हल्दीराम लड्डू बना रहा है, बेसन लड्डू बना रहा है, तो यहाँ पर यही बेसन लड्डू को दे आर गोइंग टू एक्सपोर्ट टू जापान। They are not going to change it in a different taste. They are not going to make it according to their country, but they are going to sell the same product, whatever is made in our country. So इसको कहते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग। इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट मार्केटिंग। यहाँ पर हम प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में सेल कर रहे हैं, यानी दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, लिखो इसमें क्या होता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग। समझ आया कुणाल बेटा? क्लियर हो गया? चलिए एक्सपोर्ट मार्केटिंग लिखिए। एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज द सेकेंड स्टेज। एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज द सेकेंड स्टेज। एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज द सेकेंड स्टेज ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट में भी दो तरीके का एक्सपोर्ट होता है, बताते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है ना कि कोई भी कंपनी ना खुद से दूसरे कंट्री में सामान को भिजवाने का काम करेगी, यानी वो कंट्री का खुद अपना एक्सपोर्ट हाउस होगा और उसी के थ्रू वो प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में सेल करवाएगी। ठीक है, और कुछ कंपनीज क्या होती हैं कि वो किसी एक्सपोर्ट हाउस का, ठीक है, हेल्प लेगी, पहले उनसे मदद मांगेगी, पहले उनको प्रोडक्ट सेल करेगी, फिर वो एक्सपोर्ट हाउस दूसरे कंट्री में जाके प्रोडक्ट सेल करेगा। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट, जहां पे बीच में मीडिएटर आ गए, मिडिलमैन आ गए, तो उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इज समथिंग जो कंपनी खुद से इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रही है और इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट क्या है, क्लियर हो गया? एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या है कुणाल? नो मैम, तो वो अपना प्रोडक्ट तो खुद की कंट्री में भी तो क्या बोला कि हल्दीराम का जो बेसन लड्डू मान लो कि वो इंडिया में मिल रहा है, उसी प्रोडक्ट को आप दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर दोगे, आपको कोई चेंज बदलाव ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो इसमें लिखे एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज द सेकेंड स्टेज। इसमें आगे लिखे द एक्सपोर्ट मार्केटर। एक्सपोर्ट मार्केटर जो एक्सपोर्ट करने में जो कंपनीज इन्वॉल्व है, एक्सपोर्ट मार्केटर्स tend to take an ethnocentric approach, tend to take an ethnocentric approach to foreign market, यानी जो एक्सपोर्ट मार्केटर्स हैं tend to take an ethnocentric approach to foreign market, यानी अपने कंट्री में जो प्रोडक्ट बनाया है उसी को दूसरे कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट करने में कंडीशन लग जाता है कि आप वही प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करोगे जिसका ऑर्डर आएगा, यानी कि जो आपसे मंगवाया जाएगा, जिसको मंगवाया जाएगा दूसरे कंट्री से, वही आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। राइट, सो वी कैन एक्सपोर्ट दूस प्रोडक्ट। आगे लिखिए, आगे लिखिए, लिख लिया ना? एक्सपोर्ट मार्केट टेंड टू एन इथनोसेंट्रिक अप्रोच टू फॉरेन मार्केट। आगे लिखिए कॉमा देकर, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलप्ड प्राइमरीली, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलप्ड प्राइमरीली for home customers, primarily for home customers. Export product developed primarily for home customers.
with limited adaptations, with limited adaptations, with limited adaptations. What does it mean? कि जो बेसिकली एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होते हैं वो अपने कंट्री के लिए बेसिकली बनाए जाते हैं और दूसरे कंट्री में अगर डिमांड आता है तो वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट इट, राइट? बट द मेन थीम ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज दैट वी आर ऑल्सो here in this concept we are stick toward the same approach, that is ethnocentric. Like we first need to focus on our domestic market, but here the link is between the international market. पहले वाले में domestic में तो कोई link नहीं था ना, but here basically in export marketing that is linked with the international market. Clear हो गया export marketing किसको कहते हैं कुणाल? Yes ma'am. So basically अगर हम देखें effectively तो कंपनी जो है ये यहाँ पर फॉरेन मार्केट रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है. एक्सपोर्ट मार्केटिंग में वी डोंट नीड टू बिकॉज वी आर नॉट अडैप्टिंग समथिंग, वी आर नॉट डेवलपिंग समथिंग न्यू फॉर द फॉरेन कस्टमर्स, बट वी आर सेलिंग द सेम थिंग वॉट एवर वी आर मेकिंग फॉर द आवर ओन कस्टमर्स और आवर डोमेस्टिक कस्टमर्स और आवर ओन कंट्रीज कस्टमर. क्योंकि here we don't need to do the foreign research, foreign market research करना ही नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट खुद के लिए बनाएंगे वही बेचेंगे, राइट? सो यहाँ पर जो है वी आर एंड हम लोग को इतना ज्यादा एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं, क्लाइंट का फीडबैक, ठीक है? बिकॉज यहाँ पर हमने कुछ स्पेशली बनाया ही नहीं है उनके लिए. हमने जो भी बनाया अपने देश के लोगों के लिए बनाया है और वही सेम चीज आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपके डिमांड पर, ठीक है? और यहाँ पर इन दिस स्टेज वही है कि कंपनी सेल करता है सेम प्रोडक्ट फॉर देयर डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज फॉर फ्यू अदर फॉरेन मार्केट. मतलब जो यहाँ बन रहा है वही चीज फॉरेन मार्केट में जा रहा है. कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई नया अडेप्टेशन की जरूरत नहीं है, फॉरेन मार्केट नीड को समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर कंपनी जो है दे आर रिमेन सेंटर्ड एट द डोमेस्टिक मार्केट and they are not going to focus on the cultural thing of the different or other country, demand of the other country, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केटिंग. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से कुणाल? Yes ma'am. Yes. चलिए नेक्स्ट लिखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग. नेक्स्ट लिखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग. इंटरनेशनल मार्केटिंग के बगल में लिख लीजिए ब्रैकेट में कंट्री बाय कंट्री. कंट्री बाय कंट्री. लिख लिया? कंट्री बाय कंट्री. Yes. नाउ here लिखिए इंटरनेशनल कंट्री कंट्री बाय कंट्री मार्केटिंग में कंसेप्ट क्या है? यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट जो होंगे, यहाँ पर जो आपके एक्सपोर्ट मार्केटिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है, पता ही है. जैसे ही हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करेंगे जाएंगे, यहाँ पर इंटरनेशनल जो आपका मार्केटिंग होगा यहाँ पर वी आर गोइंग टू एम्फसाइज द फॉरेन कस्टमर्स. यहाँ हम फॉरेन कस्टमर्स पे भी ध्यान देना शुरू करेंगे, ठीक है? वी आर गोइंग टू एम्फसाइज एंड और ऑन प्रोडक्ट एंड प्रमोशनल अडेप्टेशन, यानी प्रोडक्ट और प्रमोशनल अडेप्टेशन पे बेसिकली हम ध्यान देंगे. यहाँ पर हम प्रोडक्ट नए नए बनाएंगे, प्रमोशनल एक्टिविटीज करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करेंगे. तो इसको हम एक और चीज कहते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टी डोमेस्टिक मार्केटिंग. इसका एक और नाम है मल्टी डोमेस्टिक मार्केटिंग, ठीक है? अब एग्जाम्पल में देखिए कि एक फूड मार्केटर है, कोई एक फूड मार्केटर है एंड हु चेंजेस द टेस्ट, हु चेंज, ओके. So in the concept of the international marketing, that is also known as the multi domestic marketing. Example मैं बता रही थी आपको कि एक कोई food marketer है who changes the taste of the product which suits to the local taste. यानी कि यहाँ पर जो person, यहाँ पर जो companies है, they are now dealing with the changing of the taste and according to the suitability or demand of that product in the local areas. Like if the people eat burger there, so we have to introduce that food, right? So here in international marketing concept, we don't need to basically use that, or we do need to stick toward the same concept, same approach, ethnocentric, but we have to move toward the another approach. दूसरे अप्रोच की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा. यहाँ पर हम प्रोडक्ट को जो बनाएंगे वो अब दूसरे कंट्री के जो टेस्ट और डिमांड के हिसाब से बनाएंगे, प्रोडक्ट में अडेप्टेशन लाएंगे, प्रोडक्ट में चेंजेस लाएंगे, प्रमोशनल एक्टिविटीज करेंगे. तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग. तो इसको लिखिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग को लिखिए
इंटरनेशनल मार्केटिंग में लिखिए दिस इज द थर्ड स्टेज, दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, या दिस इज द थर्ड स्टेज है ये। इसमें लिखिए when export marketing becomes a part of organization activity, when export marketing becomes a part of organization activity, it will growth and expansion by entering the international marketing stage, आगे लिखिए the feature is orientation, या इसमें लिखिए the feature is orientation which emphasize on product and promotional adaptation in foreign market, so here the product will be become, मतलब नए प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना, नए प्रोडक्ट को बनाना अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लोकल कस्टमर, दैट इज बेसिकली डन इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टेज। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि जो स्किल होगी कंपनी का टू एक्वायर और अडैप्ट वन मार्केट विल बी यूज्ड अगेन फॉर द ऑल अदर कंट्रीज, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट को, हाँ बोलो, एक मिनट रुको क्या वो emphasize on product and yes, promotional adaptation। हो गया? yes, हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, देखो ध्यान देना इस बात पे कि क्योंकि जो हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर समझते हैं कि प्रोडक्ट का नीड क्या है, मतलब बेसिकली दूसरे जो भी मार्केट है, और यहाँ पर हम फॉरेन मार्केट में वही प्रोडक्ट बेचेंगे उनके हिसाब से बदलाव करके। और आपकी जो स्किल है कंपनी का, मतलब जो यहाँ पर लोग जो है या फिर कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं जो एक मार्केट को अडॉप्ट करने के लिए, एक मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे ना, वही वाले प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में भी वो क्या करेंगे, दूसरे कंट्रीज में भी वही सेल करेंगे। इस स्टेज में आप एक या दो कंट्रीज के साथ ज्यादा से ज्यादा डील करते हो, और इस स्टेज में आप जो एक ही फॉरेन प्रोडक्ट जो होगा, इट इज अ स्टेज ऑफ वन फॉरेन प्रोडक्ट फॉर वन फॉरेन कंट्री, मतलब एक या दो फॉरेन कंट्री के लिए आप काम करोगे, एक प्रोडक्ट बनाओगे अपना आप एक फॉरेन कंट्री के लिए। जैसे मान लो कि इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया जो है वो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केटिंग अप्रोच को देखते हुए यूएसए में जो भी डिमांड है उस हिसाब से एक प्रोडक्ट को बनाएगा और उसी प्रोडक्ट को वो बेचेगा पूरे के पूरे यूएस में। Like they are going to make a single product for one country and they are basically making the product according to the need of the foreign customer या फिर foreign country। तो इसको हम कहते हैं आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग।
Clear हो गया कुणाल? Here the concept is like कि if you have to acquire the skill, आपकी कंपनी का जो भी skill है, that is going to use for making or developing the new product, and that is like कि वहां पर आपको वही एक प्रोडक्ट को अगर आप एक कंट्री में बेच रहे हो, ठीक है, कई बार होता है कि आप एक या दो कंट्री में डील कर रहे होते हो, तो चलो उसी एक प्रोडक्ट को ही आप बेसिकली बेच देते हो, एक या दो कंट्री, ज्यादातर एक ही कंट्री के साथ इंटरनेशनल मार्केटिंग में डील होता है. The next one is multinational marketing. The next stage is multinational marketing. Multinational marketing. अब यहाँ पर मल्टीनेशनल मार्केटिंग का मतलब यही है कि एक एग्जांपल देती हूँ कि अब बुक स्टोर चेन दैट मेक एडजस्टमेंट इन इट्स स्टोर लेआउट प्रोडक्ट रेंज विद इन द रीजन. अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपके मल्टीनेशनल का, तो इसको लिख रहे हो रीजन टू रीजन मार्केटिंग. रीजन टू रीजन मार्केटिंग. रीजन टू रीजन मार्केटिंग. ठीक है. सो ये एक्सटेंशन है आपके किसका, ये दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ योर इंटरनेशनल मार्केटिंग. दो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है दैट इज अ प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल बिजनेस. यानी कि एमएनसी सुना है ना कुणाल, तुमने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसीज क्या होता है, सुना है? यस मैम. तो एमएनसीज बहुत सारी कंपनीज, आपके बहुत सारी कंपनीज है ना, आईबीएम है, कॉग्निजेंट, ये सारी एमएनसीज ही तो है, आईटी कंपनीज है, एमएनसीज है. तो बहुत सारे मॉल जो है आपके पैसिफिक, ये सब बहुत सारे इंटरनेशनल मॉल्स भी हैं. तो ये सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहते हैं इनको. ठीक है. तो इंटरनेशनल बिजनेस में इनका अच्छा खासा रोल है. इंडिया में अगर हम बोले तो एमएनसीज जो है यहाँ पर बहुत सारी हैं, बहुत सारी एमएनसीज हैं. ठीक है. तो यहाँ पर एमएनसीज का थोड़ा सा एमएनसीज को क्रिटिसाइज भी किया गया चीजों को. खैर इन सब चीजों को हम बाद में देखेंगे, पहले इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है. सो बेसिकली मल्टीनेशनल मार्केटिंग जो है दैट इज द फोर्थ स्टेज इन इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग. एंड हेयर यहाँ पर क्या होगा कि द ऑर्गेनाइजेशन मार्केट जो है वो प्रोडक्ट को बनाएगा मेनी बहुत सारे कंट्रीज के लिए अराउंड द वर्ल्ड, यानी बहुत सारे कंट्रीज के लिए. जैसे मान लो इंडिया जो है वो प्रोडक्ट बहुत सारी कंट्रीज के लिए बना रहा है, जापान के लिए, श्रीलंका के लिए, यूएस के लिए, पाकिस्तान के लिए, लाइक दे आर मेकिंग सो मेनी प्रोडक्ट फॉर सो मेनी कंट्रीज. ठीक है. सो व्हाट दे आर डूइंग हियर, लाइक इन दिस केस, इन इस सिचुएशन में क्या होगा, इट विल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बाय एंटरिंग द, यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई होगा. ठीक है. उसके अलावा रीजनल कोऑपरेशन देखा जाएगा. और बुक्स जैसे होता है ना कि एक कंट्री जो है, एक कंट्री के लिए जो आप बहुत सारी कंट्री के लिए यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट, सो यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट फॉर सो मेनी कंट्रीज इन द मल्टीनेशनल, रीजन बाय रीजन, अलग अलग रीजन के हिसाब से आप प्रोडक्ट को बनाओगे. ठीक है. रीजनल बेसिस पे प्रोडक्ट को आप बनाओगे. सो इसमें ये वाला एक पॉइंट है. ग्लोबल मार्केटिंग जो है ये थोड़ा सा इससे ज्यादा एक्सपैंडेड है. तो इन दोनों को एक बार हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. आपका मल्टीनेशनल रीजन बाय रीजन मार्केटिंग और ग्लोबल मार्केटिंग. मल्टी रीजन बाय रीजन में यहाँ पर वी आर बेसिकली डीलिंग इन सो मेनी कंट्रीज, वी आर बेसिकली डीलिंग इन विद सो मेनी कंट्रीज एंड प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स टू देम. ठीक है. सो डोमेस्टिक मार्केट क्या है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग, ये मल्टीनेशनल मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केटिंग. सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट क्लास. एनी डाउट कुणाल? मैम एक्सपोर्ट मार्केटिंग कितने सारे प्रोडक्ट वो अपने कंट्री के लिए जो बना रहे हैं ना, वही प्रोडक्ट वो दूसरे कंट्रीज में भेजेंगे. फ्यू कंट्रीज, 3 4 5. क्लियर हो गई बात? हम ये हो सकता है कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंट्री से डील करें, बट एक्सपोर्ट मार्केटिंग में वी आर डीलिंग विद द फ्यू कंट्रीज एंड वट एवर वी आर मेकिंग फॉर आवर होम कंट्री वी आर गोइंग टू सेंड और सेल द सेम प्रोडक्ट इन द एक्सपोर्ट मार्केटिंग एज वेल. क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस मैम. Okay, so see you in the next class.